آپ کے بچے آپ کے سامنے ہو تو آپ ہمارے اکابر علماء کا ذکر کریں، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا ذکر کریں، حضور شیخ اعظم کا ذکر کریں۔ جب آپ کے بچے آپ کے سامنے ہو، علامہ ارشد القادری کا ذکر کریں۔ آپ کے بچے آپ کے سامنے ہو، امام علم و فن علامہ خواجہ مظفر صاحب کا آپ ذکر کریں، امام النحو حضرت علامہ مفتی بلال صاحب کا ذکر کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ہو تو آپ اپنے علاقے کے اکابر علماء کا ذکر کریں۔ قسم خدا کی جب اپنے بچوں کے سامنے ان بزرگوں کی تاریخ بیان کریں گے، آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کا بے وفا نہیں، آپ کا بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا نہیں، آپ کا بیٹا ولی نہیں بن سکتا ہے لیکن آپ کا بیٹا غوث اعظم کا عاشق ضرور بنے گا، آپ کا بیٹا سرکار غریب نواز کا عاشق ضرور بنے گا، آپ کا بیٹا جب ان باتوں کو بچپن سے سنے گا آپ کا بیٹا شراب خانے کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھی ماں باپ آواز دیں گے آپ کا بیٹا پوری رات کھڑے ہو کر ماں باپ کی حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پہ پیارے آقا الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک یہاں پر تشریف فرما علماء ذویل احترام خصوصیت کے ساتھ نباز قوم و ملت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا مجاہد الاسلام صاحب قبلہ، جو خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں، ماشاءاللہ، حضرت علامہ مولانا جنید صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا مزمل صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، میں سب کا نام تو نہیں جانتا، میں چہرے سے پہچانتا ہوں یہ سارے علماء میرے سر کے تاج ہیں، طلبہ اسلامیہ، سامعین عزیز بچوں، اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ببڈے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویما، ایک کو کم کر دیجئے آواز بڑھائیے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک عاشق مصطفیٰ، ایک عاشق رسول، ایسے عاشق رسول جو اپنی حیات میں کہتے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، بے شک تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کے عشق کے امام سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان آج سے 100 سال پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پکار اٹھتے ہیں،
अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और खानकाह रशीदिया के एक बहुत सूफी आलिम दीन हजरत सरकार आसी ने कहा था, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न बेशक की हक है। तस्वीर कोई क्या खेल। कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़ मुनव्वर पर। सुभान अल्लाह सुभान। और इख्तिसाब फैज़ के लिए मैं अपने पीर हुजूर ताजुश्शरिया का एक शेर पढ़ दूं। मेरे पीर ताजुश्शरिया ने कहा था, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। तो सरकार आसी कहते हैं, अखीर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। यह हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, एक से एक काबिल, एक से एक बाअमल उलमा यहाँ पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें हर खानकाहों के पीरों ने, किसी को खानकाह रज़विया के पीरों ने नवाजा तो किसी को खानकाह अशरफिया के पीरों ने नवाजा है। मैं इनके सामने जाहिल आपके सामने थोड़ी देर कुछ बातें पेश करूं। मैं अपने इलाके के लोगों के सामने अपने दिल का दर्द बयान करता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर कर जाए। मैं उस वक़्त से देख रहा हूं कि नौजवान साइड में खड़े हैं, पिंडाल में आके बैठ नहीं रहे हैं। सारे लोग इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें और मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सुनें। सुनेंगे ना थोड़ी देर, सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। अगर आप उर्दू समझ रहे हैं तो आप वहां खड़े नहीं रहेंगे, आप आके बैठ जाएं। जहां जगह आपको मिल रही है बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं। कुछ नौजवान और कुछ कौम की हमारी बेटियां मार्केटों में सिर्फ घूमने के लिए आती हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को पहले इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता कराएं। बेशक हमारे इलाके में पहले लड़कियों के इदारे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हुजूर ताजुश्शरिया का करम हुआ तो इलाके में अलबनात ना जाने कितने मदरसे कायम हो गए। बेशक हज़रत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब की वो बात मुझे आज भी याद है। हज़रत ने कहा था कि एक दिन ख्वाब में हुजूर ताजुश्शरिया आए और मेरे हाथ को पकड़कर उन्होंने इस जगह को दिखाया जहां पर हमने अलबनात कायम किया है। जी, अलबनात भी आज इलाके में बहुत सारे हो गए, सारे लोग देखें। मैं यूट्यूबर लोगों से अक्सर ये कहता हूं कि इलाके के लोगों से आप बेवफाई ना करें, ये हमारे इलाके के उलमा हैं। आप व्यूज के लिए और ना जाने किसके लिए सिर्फ दूसरे का आप जो काम करते हैं वो भी करें, मना नहीं है, लेकिन इलाके के लोगों को आप फरामोश ना करें। हजरत अल्लामा जमील साहब भी बैठे हैं, सुने। अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा से पहले आरास्ता कराएं, अपनी बच्चियों को हाफिजा बनाएं, आलिमा बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के उलमा ने आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कर रखा है। लड़कों को अगर आलिम बनाना चाहते हैं वो भी मदरसा मौजूद है। बेशक हज़रत अल्लामा मुज़म्मिल साहब क़िबला अल-जामिअतुर रज़विया नाइमुल उलूम के नाम से वो मदरसा चला रहे हैं, आप अपने बच्चे को वहाँ पे डालें।
حضرت علامہ جنید صاحب ہیں، حضرت علامہ جمیل صاحب ہیں، دیگر علماء، اہل سنت والجماعت کے علماء نے دارالعلوم لڑکوں کے لیے بھی قائم کیا ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی قائم کیا۔ اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ان مدرسوں میں دے دیا تو قسم خدا کی یہ مدرسے آپ کے بچے کو جاہل نہیں بلکہ آپ کے سامنے، سماج کے سامنے ایک حافظ قرآن کی شکل میں دیا کرتا ہے۔ بے شک اگر آپ اپنی بچیاں ان مدرسوں میں دیتے ہیں تو آپ کی بچی اب جاہلہ نہیں رہتی ہے بلکہ یہ مدرسے آپ کی بچیوں کو عالمہ فاضلہ کے شکل میں دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اس لیے اے لوگو ذہن آپ بدلیں، سوچ بدلیں، آپ اپنی سوچ کو اعلیٰ کریں، آپ اپنے اندر بیداری لے کر کے آئیں کہ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے ہی ہیں لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ پہلے اپنے بچوں کو عالمہ، اپنی بچیوں کو عالمہ اور اپنے بچوں کو پہلے عالم اور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ارے کم سے کم قدم تو آگے بڑھاؤ، ایک بڑھے گا، ایک آگے نکلے گا، اس کے پیچھے 10 آئیں گے۔ بے شک ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ بے شک صاحب حضرت علامہ مزمل صاحب قبلہ نے یہ تعمیر مدرسہ اور جشن حفاظ کانفرنس کے نام سے اس جلسے کو رکھا ہے۔ آپ کے بچے یہاں آ کر علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، آپ کے بچے یہاں کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے بچے دنیا میں رہتا ہے بگڑا ہوا، سماج میں رہتا ہے دوسروں کو گالی دیتا ہوا، لیکن جب آپ کے بچے ان اداروں میں آ کے پڑھتا ہے تو پھر اس اداروں سے آپ کے بچوں کو انسان بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنایا جاتا ہے۔ آپ کی بچیاں مدرسے میں جا کے پڑھتی ہے، آپ کی بچیوں کو ایک بہتر سے بہتر انسانیت کا پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے۔ لوگوں، نوجوانوں، آج آپ جلسے کے نام پہ آتے ہیں، آپ جلسے میں آنے کے بعد مارکیٹوں میں آج تم نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ کوئی آوارہ لڑکیاں آتی ہے، وہ نہ جانے کاغذ کے ٹکڑے سے اپنا نمبر کسی دوسرے کو دیا کرتی ہے۔ نوجوان اس لڑکی کا نمبر لے کر پھر رات دن نہ جانے پاگلوں جیسا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا آخر کیوں اتنا بگڑ رہا ہے۔ وہ بیٹا شراب کے اڈوں میں چکر مارتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بیٹا نہ جانے کہاں کہاں رات گزارتا ہے، کبھی روڈ میں پڑا رہتا ہے تو کبھی کہیں پہ گھما کرتا ہے۔ لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے بگڑتے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کے سماج کا مولوی نہیں ہے، آپ کے علاقے کے علماء نہیں ہے۔ علماء تو آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے صحیح تربیت دیں، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر لیا، آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لی، قسم خدا کی وہ بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا نہیں بلکہ ماں باپ کے خدمت گزار بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگوں، اگر آپ کے اندر یہ بیداری آ گئی، آپ کے اندر یہ انقلاب آ گیا، انقلاب کب آئے گا آپ کے اندر؟ بیداری کب آئے گی آپ کے اندر؟ جب آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کی نشست میں بیٹھ کر آپ اسلام کی باتیں سیکھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیغامات کو سنیں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ صاحب ذہن کو حاضر کریں، مسلمان کب تک تمہارا مذاق بنایا جائے گا؟ ہمارا مذاق ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آج ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس لیے تو خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی کہتے تھے کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے۔ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں نہ جانے 2-2.5 سال سے فلسطین کے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی آپ کو توفیق ہوئی
کہ آپ قرآن کی تلاوت کیے ہوتے نماز پڑھ کے ان مسلمانوں کے لیے آپ دعا کیے ہوتے. یہ ذات ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے اندر جو بیداری ہونی چاہیے وہ بیداری نہیں. ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ ہمدردی نہیں ہے. صاحب آج اس جلسے میں آئے ہیں علامہ مزمل صاحب قبلہ نے آپ کے لیے آج یہ مدرسہ قائم کیا ہے. پیغام لے کے جائیں. ہماری سوچ تو آج یہ ہو گئی ہے صاحب، مسجد کا امام جمعہ کی خطبے سے پہلے 15 منٹ کی تقریر میں آپ کو پیغام دیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے. ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے صاحب، لیکن جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی امام کو ہم کوستے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے گاؤں کے علماء کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ہمیں کوئی کام نہیں ملتا ہے تو پھر مدرسوں کے ذمہ داروں کے تعلق سے بولتے ہیں. لوگوں اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو ان اسلامیات پہ نہ کریں، کمپٹیشن کرنا ہے تو علم حاصل کرنے پہ آپ کریں. کمپٹیشن کرنا ہے تو ایجوکیٹڈ آپ کے بچے کیسے بنے اس پر آپ جو ہے کمپٹیشن کریں. لیکن آج کمپٹیشن ہم کس بات پہ کرتے ہیں کہ فلانا آدمی یہ کام کر رہا ہے، اس کو کیسے ڈیمولائز کر دیا جائے، اس کا کام کیسے کام خراب ہو جائے. ہم اس لیے آج آگے بڑھ رہے ہیں. لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے. ایجوکیٹڈ آپ کے بچے کیسے بنیں گے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہماری ائمہ ہم سے کہتا ہے ان باتوں پہ آج ہم عمل نہیں کرتے. علماء ہمیں کہتا ہے، لیکن لوگوں آج اپنی سوچ دیکھیں. سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں. اگر آپ راستے سے گزرتے ہیں تو لوگوں راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا رہے تو آپ اس غرض سے نہیں اٹھاتے ہیں. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے میرا پڑوسی آ رہا ہے، کچھ دن پہلے میرے ساتھ اس کے ساتھ جھگڑا ہوئے تھے، وہ آئے گا پتھر میں ٹھوکر لگے گی، گرے گا چوٹ لگ جائے گی. لیکن پیغمبر اعظم سیدہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دیکھے. میرے آقا مکے کی وادی سے گزرتے، میرے مصطفیٰ پہ اتنے ظلم ہوتے، کفار و مشرکین آپ پہ ظلم کرتا. جس راستے سے آپ گزرتے اس پر شیشے اور کورے کچرے ڈال دیے جاتے، لیکن مصطفیٰ جب راستے سے گزرتے تو راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھاتے اس نیت سے کسی آنے والے کو چوٹ نہ لگ جائے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نبی کو اپنا آئیڈیل مان، مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزار. اگر مصطفیٰ نے ایسا کام کیا ہے تو آج ہم بھی یہ کریں کہ آنے والا آئے گا پتھر میں ٹھوکر لگے گی، کہیں گر کے چوٹ نہ لگ جائے، اٹھا کے آپ اس نیت سے رکھ دیں. جب آپ اس پہ عمل کریں گے آپ ثواب کے بھی حقدار ہو جائیں گے. جب آپ کے اخلاق کو کوئی دیکھے گا تو دیکھ کر یہی کہے گا یہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ مدینے کے پیغمبر آدم کا عاشق کا گزر ہو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کا گزر ہو رہا ہے. جب تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوہی جو ان کے ہو گئے، رحمت پروردگار اپنی. صاحب ذہن بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے اندر علماء کی محبت پیدا کرو. علماء کی نشست میں بیٹھنے کا آپ موقع نکالے، علماء کی محفل میں بیٹھا کرے. اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن بنانے کا اپنے اندر شوق پیدا کرے. ہمارے بچے بگڑتے ہیں صاحب، اس کا ذمہ دار کون؟ باپ اور ماں ہوا کرتا ہے. میں آپ سے پوچھوں صاحب، آپ کا 4 سال 5 سال کا بیٹا جب راستے سے گزرتا ہے، ان علماء جب اس بچے کی زبان سے گالیاں سنتا ہے تو اپنے کانوں میں رومال رکھ لیا کرتے ہیں. کہتے ہیں اخیر یہ بچہ اتنی گندی گالی کہاں سے سیکھا ہے؟ کون اس کو بچے کو گالی سکھایا؟ کوئی پڑوس میں رہنے والا سکھایا کہ سماج میں رہنے والا سکھایا؟ نہیں. جب ماں باپ اپنے آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو پھر یہ بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی گالی کو اپنے دماغ میں کیچ کر لیتا ہے. اس لیے اے لوگوں، اگر بچوں کے مستقبل کو آپ روشن کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے بچے کے مستقبل خراب ہو جائے. اس تعمیری مدرسہ اور جشن حفاظ کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائے. آج تک آپ نے کیسی زندگی گزاری؟
पता नहीं आपने गुनाह किया होगा, लेकिन ऐ लोगो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तौबा को फौरन कबूल करता है। सिद्क दिल से तौबा करे, कल आपसे ऐसी जिंदगी गुजारे कि जब बच्चे आपके सामने आ जाए तो आप किसी दुनियादार की बात न करना, बल्कि बच्चे के सामने रहना तो मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हुए रहना। बच्चे के सामने आप रहेंगे तो कुरान की तिलावत करते रहे, बच्चे के सामने आप रहें तो आप गौसे आदम का जिक्र करें, आप बच्चे के सामने रहे तो आप रसूल कायनात का जिक्र किया करें। जब उस बच्चे के सामने आप हो ना तो अपनी जबान से गंदी बात ना निकाले, बल्कि सरकार गरीब नवाज की सीरत बयान करे, इन उलमा का जिक्र बयान करे। जब बच्चे के सामने आप हो तो आप ताज शरिया का जिक्र करें, आला हजरत आशिक सादिक का जिक्र करें। कौन आशिक सादिक? सरकार इमाम अहमद रजा, जिसने कहा था जब तक बिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। जब आपके बच्चे आपके सामने हो तो आप हमारे अकाबिर उलमा का जिक्र करें, आला हजरत अशरफी मियाँ का जिक्र करें, हुजूर शेख आदम का जिक्र करें। जब आपके बच्चे आपके सामने हो अल्लामा अरशदुल कादरी का जिक्र करें, आपके बच्चे आपके सामने हो इमाम इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर साहब का आप जिक्र करें, इमामुन्नह हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब का जिक्र करें। जब आप अपने बच्चों के सामने हो तो आप अपने इलाके के अकाबिर उलमा का जिक्र करें। कसम खुदा की जब अपने बच्चों के सामने इन बुजुर्गों की तारीख बयान करेंगे, आपका बच्चा बड़ा होकर आपका बेवफा नहीं, आपका बच्चा बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं, आपका बेटा वली नहीं बन सकता है, लेकिन आपका बेटा गौसे आजम का आशिक जरूर बनेगा, आपका बेटा सरकारे गरीब नवाज का आशिक जरूर बनेगा। आपका बेटा जब इन बातों को बचपन से सुनेगा, आपका बेटा शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा। जब भी माँ बाप आवाज देंगे, आपका बेटा पूरी रात खड़े होकर माँ बाप की हुक्म की तामील करता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत। वक्त नहीं है। हजरत अल्लामा मुजम्मिल साहब ने कहा है कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। सुनो, आज अगर मदरसे आज कमेटियां बैठती है, चाहे मस्जिद की कमेटियां हो या मदरसे की कमेटियां हो, साहिब कमेटी बैठने के बाद अगर किसी इंसान को सदर बनाया जाता है, अगर मस्जिद का सिक्योरिटी बना दिया जाए, अल्लाह अकबर, अब फूले नहीं समाता। अब वो क्या करता है, जैसे सिक्योरिटी साहब बना, अब इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ा, इमाम साहब दरवाजे अभी मस्जिद के अंदर है, सेक्रेटरी साहब दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। इस नीयत से इमाम साहब अब निकल रहे हैं, सलाम करता है कि नहीं करता है? अल्लाह अकबर। सदर साहब खड़े रहते हैं, कहते हैं इमाम साहब मस्जिद से निकले, सलाम करता है कि नहीं? सदर सेक्रेटरी देखता रहेगा इमाम के तरफ कि इमाम साहब सलाम करता है कि नहीं करता है। तूने ये कौन सी सोच बनाई है? अल्लाह अकबर। आज हाल ये है साहब, मदरसे का सेक्रेटरी हो या मस्जिद का सेक्रेटरी हो, उसका जहन ये बन चुका है कि इमाम हमारी गुलामी करे। ये सोच बदल, इमाम तेरी गुलामी नहीं करेगा। सोच ये बना कि ये अल्लाह का एहसान है, हम इस लायक नहीं थे, हम मस्जिद के सदर बन गए, हम मस्जिद के सेक्रेटरी बन गए। इमाम मेरा गुलामी नहीं करेगा, बल्कि हम इमाम की गुलामी करके दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सोच ये बना। बेशक आज अगर बन जाए तो मौली साहब मेरी खिदमत करे, उलमा को हम गिरी हुई नजर से देखे। सुनो लोगो, जब तक इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल नहीं करेगा, तेरे कौम में बेदारी नहीं आएगी, समाज में इनकलाब नहीं आएगा। इसलिए इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर पहले, फिर अपने बच्चे को IAS IPS ऑफिसर बनाएं, फिर आप दुनियावी तालीम से बच्चों को आरास्ता कराएं। लोगों में ये कह रहा था, आज 10-12 दिन से चल रहा है। अल्लाह अकबर। देखे संभल की सरजमीन पे मुसलमानों, तुम पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेफ हैं। अरे सिर्फ इस इलाके में सेफ रहने का मतलब ये सेफ नहीं है। आप सेफ नहीं हो, तुम्हारे भाइयों को जिंदा कत्ल किया जा रहा है, गोली दागे जा रहे हैं, तुम्हारे तारीखी मुकामात पे हमले हो रहे हैं।
तुम में कब बेदारी आएगी? लोगों, मैं ये नहीं कहता कि आपको लड़ने की जरूरत है, नहीं नहीं, बल्कि अपने अंदर आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मुस्तफ़ा का दीवाना बन जा, ये दुनिया तुम्हारे गुलाम बनती हुई नजर आएगी। साहिब ज़हन को हाजिर करे, इसलिए आज जरूरत है कि आपने अंदर बेदारी लेके आए, उलमा के करीब बैठे, तारीख इस्लाम का मुताला करें, तारीख इस्लाम को हम पढ़ें, इन उलमा से हम सीखें। थोड़ी देर मेरी तरफ देखें, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, सारे लोग हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, और आला हजरत की ज़बानी कहो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी है या रसूल अल्लाह, लंगर उठा दिया है। आला हजरत की ज़बानी कहा करो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरत आ गए, अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब की आमद है। इधर देखें, इधर देखें, इधर सब आएंगे, सब यहां से जाएंगे। दुनिया में जितने आए हैं सबको जाना है। बात समझ में आ रही है आपको? मेरी समझ में आ रही है? लोगों, बस 5 मिनट मेरी बात सुन ले। आज देखें कौमी सतह पर पूरी दुनिया में आज पकड़ यहूदियों की है। कुरान शरीफ हम कब पढ़ते हैं? सिर्फ रमजान के महीने में। कुछ लोगों कुरान की तिलावत किया कर, कुरान मुकद्दस को पढ़ाकर नमाज से पहले नमाज के बाद घर में करो, मस्जिद में करो, कुरान की तिलावत किया करे। आज से 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जब फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक 6 साल या 7 साल के बच्चे पे आके बम गिरा ना, बम, वो बम बच्चे के पैर पे आके गिरा, टांग टूट गई, पैर में इतना बड़ा जख्म हुआ, वो बच्चा बेहोश हो गया बम गिरने के बाद। लोगों ने उस बच्चे को उठाया, लोगों ने उस बच्चे को उठाया, दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल लेके गया। जैसे हॉस्पिटल लेके गया ना, तो डॉक्टरों ने देखा तो कहा कि इस बच्चे की टांग का फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टरों ने कहा तो लोगों ने कहा ठीक है, जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए नशे के इंजेक्शन का देना जरूरी है, और नशे का इंजेक्शन भी नहीं है, दर्द का भी इंजेक्शन नहीं है। उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया था जानते हो? कहे डॉक्टरों सुनो, अगर नशे का इंजेक्शन नहीं है कोई बात नहीं, दर्द का इंजेक्शन नहीं है कोई बात नहीं। फिर डॉक्टरों ने उस बच्चे से कहा था बेटा फिर क्या किया? जब बच्चे ने कहा ऑपरेशन करे, डॉक्टरों ने कहा था ए बच्चा सुन, अगर नशे का इंजेक्शन नहीं देंगे तो तुम्हारे पैर का हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिलिस्तीन के उस 6-7 साल के बच्चे ने यह जवाब दिया था, ए डॉक्टरों सुनो, नशे के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, दर्द के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, सुन तू मेरे पैर का ऑपरेशन कर। अल्लाह ताला ने जिस कुरान को अपने महबूब पे नाजिल किया है, अल्लाह ने फरमाया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। ए डॉक्टरों सुनो, मैं कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहूंगा, तू मेरे पैर का ऑपरेशन कर दे। अल्लाह पर फिलिस्तीन का बच्चा है, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, डॉक्टरों ने उसके पैर का ऑपरेशन किया, बच्चे को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। इसलिए ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, जरूरत है कि आज आप कुरान शरीफ पढ़े, मेरी बहनें घर में कुरान की तिलावत किया करें, आप भी कसरत से कुरान की तिलावत किया करें। आज बच्चे बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को आलिम इन मदरसों में लिया करके बच्चों का दाखिला कराए, अपनी बच्चियों को लड़कियों के मदरसे में ले जाकर के दाखिला कराए। कसम खुदा की, जिसका बेटा आलिम दीन बनता है उनके माँ बाप का जवाब नहीं है। ए मुसलमानों, आप दिल पे हाथ रख करके सोचे, ज़हन को हाजिर करें। बस एक चीज आपके सामने पेश कर दो मेरी बहनें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोड से पश्चिम साइड ऐसे ऐसे जाहिल बैठे हुए हैं, कोई कहता अगरबत्ती
बत्ती की दुकान लगा चुका है। कोई कहता है इसे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है हजारों के तादाद में भीड़ लग जाती है। भाई ये भीड़ काहे लगी है? कहता है हजरत ये बड़ा बुझनादार आदमी है, क्या होता है ये बोल देता है। अगरबत्ती की दुकान में जाने वाली औरतें, अगरबत्ती के दुकान में जाने वाले मर्द, सुनो तेरे ईमान कितने कमजोर हो गए। क्या तुझको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल की जात पे भरोसा नहीं है? जिस रसूल के ताल्लुक से मेरे आला हजरत सुन्नियों को पैगाम दे रहे हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे पीर ताज शरिया ने कहा था कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हैबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तुझे इन अगरबत्ती के दुकानदारों के पास जाने की जरूरत नहीं, जो अय्याशी का अड्डा बना के रखा हुआ है। इन जाहिलों के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुझ पे परेशानी आती है तो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। अगर तेरा बिजनेस नुकसान में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ का पैर दबा ले, माँ से दुआ करवा ले, बाप से दुआ करवा ले, मस्जिद के इमाम के पास जाए। हजरत मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, थोड़ा पढ़ के दम कर दीजिए। इसलिए ऐ लोगों, जरूरत है कि अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा से आरास्ता कराए। इन जाहिलों के पास नहीं, इन जाहिलों के पास आज इसलिए आप जा रहे हैं क्योंकि आपने उलमा के करीब बैठना छोड़ दिया। उलमा के करीब बैठो, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस एक मिनट, हमारे बच्चे आज बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उलमा के करीब बैठा कर नौजवान हो, हम देखते हैं जब प्रोग्राम से हम उतरते हैं, चाहे पूर्णिया मोड़ हो चाहे कानकी हो, इधर देखे, बात समझ में आ रही है? हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। बस आखिरी पैगाम, हमारे बच्चे आज ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं साहेब, नमाज के लिए जब जाता है मस्जिद में, जो बेचारे पीछे खड़े रहते हैं ना, बेचारी की नमाज खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे टाइट पैंट, ऐसा लगता है कि सजदे में जाने के बाद पैंट कहीं फट ना जाए। उलमा के पास रहते, उलमा के करीब बैठे होते, कम से कम नमाज के लिए ऐसे कपड़ों का आप इस्तेमाल ना किए होते। बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं। इसका जिम्मेदार कोई नहीं, मां जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार है। अगर बच्चों की जिंदगी आप खराब नहीं करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते ससुर को गाली ना देना, अपनी सास को गाली ना देना, बच्चे को दूध पिलाते पिलाते कम से कम किसी की गीबत तो ना करना। हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स गुजरा कि जब उसे वर्जिश करने की तबीयत चाहती ना, तो वो अपनी फौज से कहता, मेरी फौज पिंजरा का दरवाजा खोल दिया जाए, मैं वर्जिश करना चाहता हूं। अंदर जाता, शेर के साथ लड़ने लगता था। एक दिन वह नौजवान जज्बे में आया, शेर के ऊपर वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ा और नीचे वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ा। लड़ते लड़ते वह नौजवान उस शेर को फाड़ दिया। क्या किया? फाड़ दिया। शेर को फाड़ना था, लोग जमा होने लगे। अब नौजवान की मां से लोग पूछने लगे, ए नौजवान की मां, तूने अपने बेटे को कौन सी गज़ा खिलाई थी? तूने कौन सा खाना खिलाई थी कि तेरा बेटा इतना ताकतवर हो चुका? अल मुख्तसर सुने। तो उस नौजवान की मां ने कहा था, ए लोगों सुनो, मैंने अपने बेटे को कोई अच्छी गज़ा तो नहीं, कोई उम्दा खाना तो नहीं, लेकिन सुनो, जब मेरा बेटा टीपू सुल्तान दूध पीने के पीरियड से गुजर रहा था, जब उसे भूख लगती, दूध पीने की ख्वाहिश होती, तो मैं समझ जाती कि मेरे बेटे टीपू सुल्तान को भूख लग गई है, वो दूध पीना चाहता है। टीपू सुल्तान की मां कहती है कि ए
लोगों सुनो, अगर मैं बेवजू रहती तो पहले मैं वजू बना लेती, मुस्तफा करीम पे 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती, फिर अपने बेटे टीपू सुल्तान को दूध पिलाया करती थी, दूध पिलाती। टीपू सुल्तान की मां कहती है, ऐ लोगों सुनो, अगर मेरे बेटे टीपू सुल्तान में ये ताकत आई है तो किसी अच्छी ग़िज़ा या किसी उम्दा खाने की वजह से नहीं, अगर मेरे बेटे टीपू में ये ताकत आई है तो दुरूद पाक की बरकत से ये ताकत आई है। इसलिए ऐ मेरी बहने, कम से कम बच्चे को दूध पिलाते हुए गालियां ना देना, किसी को कोसना नहीं। अगर बच्चे दूध पिए तो आप मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाए, कुरान की तिलावत करते करते दूध पिलाए, नबी की नात पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करे। जो अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करेगा उसका बच्चा बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं, बल्कि माँ बाप का वफादार बनता हुआ और इंशाअल्लाह वो बच्चा दुनिया में बड़ा होकर आशिक रसूल बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता कराए, अपनी बच्चियों को अलबनात में ले जाकर के दाखिला कराए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब ने आपके सामने देखे क्या नहीं दिया, आपने उनको धान के शक्ल में चंदा दिया, आपने अनाज दिया, आपने पैसे दिए, लेकिन अल्लामा मुज़म्मिल ये सारे पैसे, इन अनाज के सारे पैसे इन मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे के पीछे सर्फ करके इस कौम को हाफिज कुरान की शक्ल में 5 बच्चे दे रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों, मेरे ताजुश शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में अल्लाह मौत अता करे। मेरे ताजु, मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी के चाहने वालों, मसले की आला हजरत पे डटे रहो, आला हजरत के बताए हुए रास्ते पे चले। इसलिए तो कहा है किसी ने, वाती रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व तुबली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।